Dear students of BTech second year, I am Dr. Arvind Parsai. Welcome to all of you for today ninth lecture. Good morning, sir. Unit 3. After 7 to 8 minutes, we will start our session of today. Good morning, sir. Very good morning. सर कौन सी यूनिट चालू कर रहे हो? आपको पता है अभी तक क्लास अटेंड नहीं की तुमने? थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल 1 और 2 हो गई सर? न्यूमेरिक सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. कौन सी सर? थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. रोल नंबर 21. रोल नंबर 7 17. सर हिमांशु आ गया? हाँ बेटा ऐड कर लिया मैंने. एडमिट करते समय मैं ऐड कर लेता हूँ अटेंडेंस. एक एक करके मैं अटेंडेंस भी लेता जाता हूँ, एडमिट करता जाता हूँ. रोल नंबर 38, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं है. 36 सर. 36 हो गया है. छह मिनट बचा है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे. फिफ्टी 41, 52, 28. (46, 31). (33). Okay, 31, 41, 52. Roll number 22. Roll number 54. Shivam 48. (19). Who is Rohit? Write your roll number. Rohit, tell me your roll number.
गोविंद 16, roll number 1, who is Rohit? Tell me your roll number and surname. Are you new student? $57. सर कर दे स्टार्ट। 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा। अभी अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ ना, आपकी एडमिट कर रहा हूँ। रोल नंबर 18। टाइम हो रहा है, जाना है सर। जाना है तो क्या है मतलब, पहले स्टार्ट कैसे करूं बेटा? जस्ट 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा बेटे, टाइम से। अभी अटेंडेंस का प्रोसेस हो रहा है, फिर बच्चों का छूट जाएगा। 10 मिनट 5 मिनट वेट करते हैं हम बस। ये नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक है इसलिए। बेसिक मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज मैं एक टाइप का क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड आपको रिवाइज करूंगा। फिर इसके बाद टाइम मिल गया तो आज क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे, इस मेथड पर। आज मेथड समझ लीजिए, क्योंकि यह मेथड आगे आपको काम आएगी। रोल नंबर 22 हो गया बेटे। 41 मैं एडमिट करता जाता हूँ, आपके अटेंडेंस लेते जाता हूँ हार्ड कॉपी में। फिर इसके बाद क्लास के बाद ई कैंपस पे अपलोड करता हूँ। सर 41 हो गया बेटे। चलिए अटेंडेंस बोल देता हूँ मैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 4, रोल नंबर 7, रोल नंबर 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 46, 48, 52, 53, 54 and 57, and roll number 29. हेलो हेलो सर 46। 46 हो गया बेटा तुम्हारा। हाँ ज्वाइन किया हुआ है ना तुमने? हाँ शेखर चौहान हो गया हाँ बेटा। हो गया आपका हाँ अटेंडेंस, ठीक है। ओके सर ओके। अनाउंस किया था मैंने। सर बोलिए। श्रेयांश वेट ठीक है, आने दे उसको। Okay, dear students, I am Dr. Ravindra Prasad, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Jamil Devi Group of Institution Indore. I welcome to you again. 2648. हो गया है 48 तो पहले ज्वाइन कर चुका है।
Today our talk based on to solve the first type of elliptic equation known as two-dimensional Laplace equation. So first of all, we review this method, then we discuss the question today or the tomorrow class. So we know that an important equation of elliptic type is two-dimensional Laplace equation. What is it? It is the second order linear partial differential equation with constant coefficient having right hand side 0. That is, there is no terms of function of independent variable x and y. So when this type of equation you will face, it is called the Laplace equation. And you know that this type of equation, you know the utility in previous semester in complex function. On this basis, we say that a complex function is said to be harmonic. So when any function satisfy a Laplace equation, so you know that complex function जो होता है वो two variable का होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है function of complex variable के चैप्टर में. Sir, some students are in waiting, sir. Yeah. Sir, some students are in waiting room. Okay. क्या बात है, इतना लेट क्यों है, वेटिंग में है, क्या रीजन है? रोल नंबर 20 कुछ नेटवर्क इशू है? 56 सचिन पांडे. Why so Sachin Pandey late? Any network issue or any other issue? Harshit? Okay, now we continue our session. So I am explaining you this Laplace equation. Now our intention is to solve this numerical solution under the given boundary condition. So I once again tell you about some usefulness of this Laplace equation. So this type of equation. Sir, hello sir. चाहिए सर अनम्यूट करिए, आप बोलिए. अरे सर वो विजय चौहान मेरे वेटिंग पे पड़ा है, तो उसको ज्वाइन करो ना सर. मैं कर चुका हूँ विजय चौहान, मेरे पास दिख नहीं रहा है, मेरे लिस्ट में आ नहीं रहा है वो पार्टिसिपेंट में. नहीं हुआ सर, वो बोल रहा है सर. बेटे मैं कैसे बताऊं आपको, उसका नेटवर्क इश्यू है, उसको बोलो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर करो, क्योंकि मेरे इसमें दिख नहीं रहा है. जब सर ठीक है मैंने ज्वाइन कर दिया था, जब उसने मैं ज्वाइन किया होगा इसने पहले. कौन है? गौरव चौहान 15 अभी तक तो आया नहीं था, दिखा ही नहीं था मेरे को. ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा. So this type of equation arises in potential and steady state flow problems. Steady state and flow problems आपने नेटवर्क फ्लो में स्टडी किया होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप लोग यूज करेंगे, इसको स्टडी करेंगे सिंजिंग प्रॉब्लम को. सो दी सॉल्यूशन निकालना मतलब आपको u डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ xy. सो द सॉल्यूशन u ऑफ xy ऑफ इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन सब्जेक्ट टू गिवन बाउंड्री कंडीशन ऑन द क्लोज कर्व. इसके लिए आपके पास एक क्लोज कर्व दिया होगा जिसमें बाउंड्री कंडीशन आपको स्पेसिफाई होगी. सो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर रीजन R. इस तरह के लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर रीजन अज्यूम करते हैं. कंसीडर ए रेक्टेंगुलर रीजन R for which u of xy is known at boundary values, and divide this region R
for which u of xy is known at the boundary divide this region into a network of square mesh of side h. ये जो भी आपका रेक्टेंगुलर रीजन रहेगा इसको हम स्मॉल रेक्टेंगुलर रीजन में पाउंड्स में आप लोग डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे। सर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? एक मिनट 53 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को पहले मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूं। गलत बात है यार, बहुत लेट हो रहे हो बेटे आज की क्लास में। 49 सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, 10 बजे से कोशिश कर रहे। अच्छा 49 हो गया, 56 हो गए, ये 34, सर 53 भी। हाँ हो गया। फिफ्टी 57 में भी ज्वाइन किया है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब होता है जब कोई एक प्रॉब्लम आपको दिया होता है और उसमें एक कंडीशन के लिए वैलिड होता है तो उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और जब उस प्रॉब्लम के साथ, जैसे सपोज करो ये एक प्रॉब्लम है, लाप्लास इक्वेशन एक प्रॉब्लम है, इसके साथ यदि आपके पास केवल एक सिंगल कंडीशन दी है कि आपको सोल्यूशन निकालना है अंडर दिस वैल्यू, ओके, तो ये होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और जब एक कंडीशन के साथ एक से ज्यादा कंडीशन दी होगी, मोर देन वन कंडीशन, उसको अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तब इस तरह के प्रॉब्लम को अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अभी हमने जो इस चैप्टर में पहले की क्लासेस में स्टडी किए हैं, हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये सेकंड पार्ट है इस यूनिट 3 का, जब हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके सामने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही होगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा मतलब प्रॉब्लम के साथ इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होगी। तो उन्हीं कंडीशन को हम लोग फिक्स करते हैं, लोकेट करेंगे। कभी कभी आपको डायग्राम दिया होता है, ये बाउंड्री रेक्टेंगुलर रीजन मेंशन होता है और कभी कभी मेंशन नहीं होता है, तो हमको कैसे उसको प्लॉट करना है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इलिप्टिक प्रॉब्लम हो, मतलब लाप्लास इक्वेशन होगी, तो आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाना होगा, रफली ड्रॉ करना होगा और फिर उस पर जो वैल्यू दे रखी है कोऑर्डिनेट प्लेन के हिसाब से आप एक्स और वाई की वैल्यू लोकेट करेंगे, एलोकेट करेंगे, जिसको अपन स्क्वायर नेटवर्क रीजन भी कहा जाता है, स्क्वायर मैश भी बोलते हैं। और चूंकि साइड एच है मतलब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आपको सेम लेना होती है। So now they replace the derivative in equation 1। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब यदि प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना होता है, उनको हम फाइनाइट डिफरेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इनको फाइनाइट डिफरेंस के फॉर्म से रिप्लेस कर देते हैं। वो क्या है वो अब आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए जो फार्मूला है फाइनाइट डिफरेंस का वो ये है आपके सामने, डिपेंडेंट वेरिएबल i माइनस जे ऑफ u। ये दो सफिक्स में इसलिए यूज किया जा रहे हैं क्योंकि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के लिए i मान लीजिए और j का मतलब y है। तो आपके पास ये न्यूमरेटर में है, ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू होगी। अपन x के डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस h मान के चल रहे हैं और y डायरेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है वो हम y k मान के चल रहे हैं। रोल नंबर 16। बीच में आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, इस तरह से डोंट डू दिस टाइप ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिस। रोल नंबर 20। बीच में आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, प्लीज यू कम इन टाइम। ऑलरेडी मैं 5 मिनट का टाइम आपको देता हूं, 7-8 मिनट ज्वाइन करने के लिए देता हूं। रोल नंबर 35 and 36।
अच्छे से ध्यान से सुनिए बात को। पहली स्टेप तो हमें प्रॉब्लम को पहचानना होती है, फिर दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम में दिए हुए हैं, उनको हम फाइनाइट डिफरेंस से रिप्लेस करेंगे। तो मैं आपके सामने इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। जब प्रॉब्लम करेंगे तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। वो फार्मूला कैसे डिराइव होता है वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज ओके। तो ui माइनस 1j माइनस 2 ऑफ uij प्लस ui प्लस 1 ऑफ j। जब अपन y के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको मालूम है y वेरिएबल होता है और x कांस्टेंट होता है। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में i का मतलब x है, वो कांस्टेंट है मतलब फिक्स है, और y आपका वेरी हो रहा है, और एक k का मतलब है कॉमन डिफरेंस है अलोंग y डायरेक्शन, जिसको अपन y डायरेक्शन में लेते हैं, और x कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस के अलोंग लेते हैं, और वो है h। h इज द कॉमन डिफरेंस अलोंग x डायरेक्शन, k इज द कॉमन डिफरेंस अलोंग y डायरेक्शन। ओके, अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास ये फाइनाइट डिफरेंस का लाप्लास इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। वही हम अगले स्टेप में बता रहे जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्लाइड सभी लोग नोट कर लिया है, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं कॉपी में, नोट्स में भी आपको दिया हुआ है, पीपीटी में भी समझाया गया है, सारे एस्पेक्ट से हम बात आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब h इक्वल टू k या k इक्वल टू h हमारा स्क्वायर में से, स्क्वायर में से मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ। तो आप ये समझ लीजिए जो x डायरेक्शन में है वही y डायरेक्शन में अपन ने कॉमन डिफरेंस कॉमन लेना है, ये कॉमन लेके चलना है। k इक्वल टू h इसलिए क्या है, तो इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में अपन k इक्वल टू h रख देंगे। आप h इक्वल टू k भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इक्वेशन या तो h के लिए सॉल्व करेंगे या k के लिए सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये आपके सामने यहाँ पर हमने k इक्वल टू h रख दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला आपका सिंप्लीफाई होगा, और फिर इस फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ये uij की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज योर uij, सॉल्व करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप लोग uij की वैल्यू निकालेंगे। uij की आपके पास -4 uij है, तो uij की वैल्यू निकालने के लिए माइनस में टर्म, तो उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे और फिर उससे uij की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी ui माइनस j ऑफ j प्लस, और प्लस ui प्लस 1 ऑफ j, ui ऑफ j प्लस 1 प्लस ui ऑफ j माइनस 1। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लाप्लास इक्वेशन का निकालने का बेसिक फॉर्मूला होगा। अब इस बात को अपन ग्राफिकली यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर में से सेंटर वैल्यू जो ये पॉइंट है वो uij है। जब इसके नीचे के दिशा में जाएंगे तो आप चूंकि y के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने मान लेते हैं 1 है, तो नीचे डाउन होगा, तो i की वैल्यू आपकी x की फिक्स है, i पे रहेगी, और नीचे की दिशा में जाएंगे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये y की नेगेटिव दिशा है तो यहाँ पर j -1 होगा, और जब ऊपर जाएंगे इस सेंटर से, ये सेंटर वैल्यू uij है, ये सेंटर वैल्यू है मतलब ओरिजिन है, इसके ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस में होगी, तो इसलिए j +1 कर दिया। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये +1 है तो ये j +1 हो गया। और जब अपन राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे, आगे x दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, x वेरी करता है, y कांस्टेंट रहता है, तो i +1 हो गया, y कांस्टेंट है। और इधर बैक साइड में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव दिशा है तो i -1 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। इस तरह से अपन ग्राफिकली इन वैल्यूज को शो अप करते हैं। सर ये ऊपर वाला UI
हाँ J इज इक्वल टू UI J प्लस माइनस वन। 1J। हाँ हाँ सर ये वाला थोड़ा समझा दीजिए, समझ में देखो नहीं आया। बेटा, ये वाला जो सेंटर में, ये वाला जो यहाँ पर पोजीशन की जो वैल्यू है वो UIJ है, ये सेंटर वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अब इसको आप ओरिजिन मान लें, इसको आप लोग ओरिजिन मान लें। ठीक है, ओरिजिन है ये यस आपका, इसको पूरा क्रॉस कर लें इस तरह से। ये आपका, मैं जहां पर पॉइंटर बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इधर पॉजिटिव दिशा होती है एक्स एक्सिस की और ये नेगेटिव दिशा होती है। इसी तरह से ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव दिशा है और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव दिशा है। तो सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसमें, क्योंकि x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x से बढ़ जाएगी, तो j प्लस 1 हो जाएगी। यदि मैं एक बॉक्स और ऊपर बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, यहाँ पर ये जो मेरा कर्सर है, J प्लस 2। j+2, करेक्ट। इस तरह से इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फिर अब और इसी बात को अपन यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, j-1, एम आई राइट? यस सर। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। फिर इसके बाद इसके राइट हैंड साइड में अपन को आगे बढ़ना है। देखो, या तो अपन x दिशा में आगे बढ़ते हैं या y दिशा में आगे बढ़ते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है उसी को अपन यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अपन जब x दिशा में आगे बढ़ते हैं तो y को कांस्टेंट मानना पड़ता है। यहाँ आपके सामने सेंटर में जो वैल्यू थी j, वो कांस्टेंट रहेगी, कहीं पे भी चले जाओ इस दिशा में, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो x में इंक्रीमेंट होगा, वो x में कितना इंक्रीमेंट है, +1, i+1, और इतना ही पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, i-1, और फिर इसके पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, और इसके पीछे I-2, i-2, i-3, i-4, ऐसा इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये आपके सामने ये जो बेसिक फार्मूला क्या दे रहा है, आप समझिए इस बात को। ये जितने भी पॉइंट हैं इनका एवरेज लिया गया है, एवरेज के साथ डबल एवरेज लिया हुआ है। पहले इन दोनों वैल्यू, फिर इन दोनों वैल्यू, तो डबल एवरेज करेंगे तो आपके सामने ये फार्मूला बन जाएगा, अपने आप ये फार्मूला आ जाएगा। ये रहा सेंटर वैल्यू, जहां पर वैल्यू आपको सोल्यूशन निकालना है, ui-1 ऑफ j, ये वाला वैल्यू लिया है, फिर ui+1 ऑफ j लिया है, और फिर इसके बाद ये वैल्यू लिया और ये वैल्यू लिया है। डायग्राम से फार्मूला याद रखना आसान है, इसलिए मैंने ग्राफिकली आपको इस फार्मूले का इंटरप्रिटेशन बताया है। याद रहेगी बात। एक समय में एक पॉइंट के अराउंड वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ पर इस और आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उसके अराउंड उसके बाउंड्री कंडीशन लेंगे। ये समझ लेना, ये वाला ये एक बाउंड्री कंडीशन है, ये एक बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री कंडीशन। ये आपके पास 4 पॉइंट है, 4 बाउंड्री वैल्यूज हैं। ये आपके पास नोन होना चाहिए, तभी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तभी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। So this shows that the value of uij, u of xy है, इसकी वैल्यू को uij से डिनोट किया अपन ने, एट एनी इंटीरियर मैच पॉइंट। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला, मैच पॉइंट मतलब जो भी हमारा वैल्यू है जिस पर हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, इज द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यूज एट 4 नेबरिंग पॉइंट्स टू लेफ्ट, राइट, अबव एंड बिलो। वही जो मैंने अब आपको फार्मूला वर्ड्स में ओरली समझाया था उसको मैंने यहाँ पर स्लाइड में डिक्टेट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इस फार्मूले को हम बुकिश लैंग्वेज में, किताब की भाषा में, स्टैंडर्ड टेक्निकल भाषा में स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में SFPF के नाम से शॉर्ट में एब्रिविएट करते हैं। ये जो फार्मूला है किसने जनरेट किया था, लिमेन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस फॉर्मूले को जनरेट किया था, इसलिए इसका नाम लीमन-मेन्स एवरेजिंग प्रोसीजर कहा जाता है, एवरेजिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एवरेज लिया गया है इसलिए। ओके, तो कौन कौन सी वैल्यू का एवरेज लिया है, लेफ्ट एंड राइट, ओके, अबव एंड बिलो। बिलो का मतलब होता है ओरिजेंटल, अबव का मतलब वर्टिकल। और भाषा में इसको एबो का मतलब वर्टिकल बोल सकते हो, बिलो का मतलब ओरिजेंटल कह सकते हो। (49) का हो गया है 10s 34,
मुकेश तुम्हारा भी हो गया है अटेंडेंस आज का, गोविंद तुम्हारा भी हो गया है, टाइम अपडेट करना है मैं। Who is this? I do not know this, wrong number. Okay, dear guys, let me conclude this method. Then if time permits to me, then I will discuss the example. Otherwise, we discuss in tomorrow session. कभी कभी ये फॉर्मूला इसी तरह से हम दूसरे रूप में यूज करते हैं, जिसको आपको ये भी इस फॉर्म में भी ये फॉर्मूला याद रखना है। Sometimes a formula similar to 2 is used, which is given by this way: ui minus 1 ui plus j plus 1 plus ui plus 1 j minus 1 ui plus 1 of j plus 1 ui minus 1 of j minus 1 upon 4। इस फॉर्मूले को थोड़ा समझ लीजिए। ये फॉर्मूला किन वैल्यू का एवरेज लेके आया है। ये जो फॉर्मूला है इसमें आपका देखिए सेंटर पॉइंट तो वही है जो अभी आपको सोल्यूशन निकालना है। अभी हमने अब क्या किया है, यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू जो अपन पिछले वाले फॉर्मूले में ले रहे थे, इन वैल्यू को लेने की वजह कभी कभी हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू नोन नहीं होती है। कभी कभी एग्जाम्पल में ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास नोन नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाथ ऊंचा कर देंगे सर ये वैल्यू नहीं दी है तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा बेटे। ऐसे केस में आपके पास ये वैल्यू, ये कॉर्नर की वैल्यू नोन होती है, कॉर्नर की वैल्यू नोन होगी। तो जब ये कॉर्नर की वैल्यू नोन होगी तब इस केस में ये वाला एवरेजिंग फार्मूला अपन लगाते हैं, जिसमें आप लोग चूंकि ये डायगोनल पे है, यदि अपन इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास दो डायगोनल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अपन डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। ये वैल्यू कैसे सिंबलाइज हुई है इसका भी टेक्निक समझ लीजिए, बहुत आसान है, आपके सामने समझा देता हूं। देखिए जनाब, इधर ये x और ये y, आप एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं। तो इस दिशा में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो i प्लस 1, x की वैल्यू y प्लस 1 होगी और y की वैल्यू j प्लस 1 होगी, मतलब x प्लस h और y प्लस k। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये इसका नेगेटिव क्वाड्रेंट है। समझ लीजिए 4 क्वाड्रेंट है आपके, 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बिल्कुल जैसे पहले वाला फॉर्मूला समझाया है उसी सीक्वेंस में इसको नॉमेनक्लेचर किया है इस पॉइंट को। तो यहाँ पर आपका x भी बढ़ रहा है और y भी वेरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा i प्लस 1 j प्लस 1। इस दिशा में आइए, इस साइड में आइए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर x की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू कम हो रही है मतलब i माइनस 1। ये आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर क्या इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी ui माइनस 1 और j, लेकिन y चूंकि प्लस 1 हो गया है इसलिए अपन ने j प्लस 1 बोल दिया है। तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी, इस बाउंड्री कंडीशन को अपन ने सिंबलाइज कर दिया है ui माइनस 1 ऑफ j प्लस 1। आप इसी चीज को अपन इस कॉर्नर पे आके काउंट करें, अपने आप आपको ये डाटा मिल जाएगा। ये x और y दोनों नेगेटिव है, इधर x नेगेटिव y नेगेटिव, इसलिए -1 करा अपन ने, तो ui माइनस 1 और j माइनस 1। और इस दिशा में जाएंगे तो x प्लस है तो i प्लस 1 और y नेगेटिव है इसलिए j प्लस 1, j माइनस 1। इस तरह से आपका जब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे यदि वैल्यू नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला जब आपका पहले वाला फार्मूला फेल हो जाता है, तब उस केस में अपन ये डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको पहले वाले क्वेश्चन से मिलेगा। कभी कभी दोनों फार्मूले का ऑप्शन हमारे पास रहता है, लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंगली जब वर्ष स्थिति होगी, ऑड पोजीशन होगी, तब उस केस में हम ये दूसरा अल्टरनेट फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो मैं आपको इसका यूज एग्जांपल में भी लाइव बताऊंगा नेक्स्ट कल की क्लास में। आज इस फार्मूले को पूरा अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा।
तैयार करके आइएगा कल की क्लास में जब आप आएंगे सभी लोग। अब इसमें इस पॉइंट को, इस फॉर्मूले को किसी को समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी हमने अब इसकी नेक्स्ट सर एक डाउट है। वर्ड्स हेलो। में लिखा है, इस बात को वर्ड्स में लिख के बताया है। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसकी पिछले वाली स्लाइड मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, एक बार रिपीट करो तो सर। चलो करता हूं मैं, सॉरी ये था। सर एक बार। हाँ ये 2 ही पैराग्राफ है स्लाइड में, यस सर, थैंक यू सर। है ना। आप देखो बेटा इसमें भी उसी तरह से एवरेज किया हुआ है, बस यहाँ पर डायगोनल वैल्यू को का एवरेज लिया अपन ने। इसी बात को मैं अगले स्लाइड में सेंटेंस के पाप में आपको लिखा रहा हूं। सो दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ यूआईजे इज द एवरेज और अरिथमेटिक मीन of its values at 4 neighboring points, diagonal match points. So this is called diagonal 5-point formula. 5 पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप UIJ को जोड़ देंगे तो ऐसे अपने पास 4 तो डायगोनल की कॉर्नर की वैल्यू है और एक सेंटर वैल्यू है, तो इसको सबको मिला के 5 पॉइंट हो जाता है। इसको शॉर्टकट में एब्रिएशन में DFPF बोलते हैं। Although ये जो फार्मूला तीसरा बताया है is less accurate than 2, yet it serves as a reasonably good approximation for obtaining the starting value at the mesh point. So in the iteration process, but whenever possible, formula 2 is preferred in comparison to formula number 3. ये केवल इतना बता रहा है कि आपका फार्मूला ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है फार्मूला नंबर 3 की तुलना में। तो फॉर्मूले 2 में बेटर अप्रोक्सीमेशन होता है, फॉर्मूले 3 में इतना बेटर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूले में जो आपने इसके पहले फार्मूला समझा था वो वैल्यू नोन नहीं होती है, तो हमें मैंडेटरी यही डायगोनल वैल्यूज मालूम होती है, तो हमें इस फार्मूले को लगाना पड़ता है। इसलिए हमारा कंपल्सन इस केस में हो जाता है। So this shows that the value of Uij, U of xy is average or arithmetic of this. अब ये तो मैंने बोल ही दिया था। Now to solve a Laplace equation by finite difference method, we adopt the following set procedure. इसी बात को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, जिसको हम लोग क्लास में एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। वही हमने बाउंड्री वैल्यू को अज्यूम कर लिया है, उनको A1, A2, A3 से डिनोट कर दिया है। नाउ आर टू डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यूज ऑफ Uij ऑफ U of xy at the internal mesh point of R, since the value of U5 at the center, and therefore the values of U1, U3 and U7 and U9 are computed by using diagonal 5-point formula. Therefore we have बाकी ये जो वैल्यूज हैं उनको हम इससे कैलकुलेट करेंगे। जो हमने इसके पहले गॉस जैकोबी मेथड बताई थी और गॉस सीडल मेथड बताई थी, उस मेथड से हम लोग इस प्रॉब्लम को, इसका जो सॉल्यूशन है वो अपडेट करेंगे। जिसको हम एग्जांपल से नेक्स्ट कल की क्लास में बताएंगे इस पूरी चीज को। 1 मिनट बचा है। सर बोलिए, कहिए। सर